Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. How are you, sir? We are fine, sir. How are you? I'm fine. I'm fine. Perfectly fine. Fine, sir. शुरू शुरू करें अब हम लोग. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. All right. So last class में we were covering about conversion of habitual sentences in its 6 forms. Habitual sentence sir. का conversion हम लोग cover कर रहे थे 6 Sir, forms. last class you gave us one sentence for making. Sorry, Yes, sir. You gave us one sentence for making in 6 page. what was that sentence? मैं आपकी क्लास में हर एक पॉइंट क्लियरली समझ जाता हूँ. मैं आपकी क्लास में हर एक पॉइंट क्लियरली समझ जाता हूँ. और हम लोगों ने इससे पहले जो कवर किया था वो कवर कर रहे थे कि किसी भी सेंटेंस को हम लोग 6 तरीके से कन्वर्ट करना सीख रहे थे. यही कर रहे थे ना? Yes, sir. ऑलराइट. और मैंने अंत में एक सेंटेंस दे दिया कि मैं आपकी क्लास में हर एक कॉन्सेप्ट को समझ जाता हूँ. अब थोड़ा इसका 6 तरीके से आप लोग लिख चुके होंगे. उसको पहले हम लोग देखते हैं, फिर क्लास को आगे बढ़ाएंगे. यस. सो कम अहेड विद इन इंग्लिश में हम लोग लेते हैं. चलिए बताइए इसका इंग्लिश क्या होगा पहला सेंटेंस. I understand clearly every point in your class. I understand each and every point clearly in your class. बिल्कुल सही है. I understand. I understand each and every point या केवल every point clearly in your class. मैं Yes, sir. आपकी क्लास में सारे पॉइंट्स को क्लियरली समझ लेता हूँ. अलग अलग तरीके से बन सकता है. कोई बच्चा हो सकता है बना दे in your class I understand each and every point clearly या I understand every point clearly. ये भी आप लोग सकते हैं. Yes, sir. ठीक है. अब नेगेटिव पे आते हैं. बताओ नेगेटिव सब लोगों ने क्या लिखा है? सभी लोग I बोलेंगे. don't understand. I don't don't बोलेंगे. Don't understand every each point and in every your point class. clearly in your class. बहुत अच्छा. I don't understand each and every point clearly in your class. मैं आपकी क्लास Yes. में हर एक पॉइंट क्लियरली नहीं समझता हूँ. नहीं समझता. क्लियर हो गया? इसके बाद Do I understand each and every point clearly in your class? फिर से बोलो. Do I understand? Do I understand every every point point clearly in your class? In your class. Do I understand each and every point clearly in your class? क्या मैं Yes, sir. सारा पॉइंट्स आपकी क्लास में क्लियरली नहीं समझता हूँ? बिल्कुल सही बात है. आगे बढ़ते हैं. Don't I understand each and every point Don't I clearly each in and your every class? Each and every class clearly in your Don't I understand each and every point clearly in your class? बिल्कुल सही आप लोग चल रहे हैं. अब हम लोग लेते हैं नंबर 5 यानी WH क्वेश्चंस को. बोलो क्या होगा? Why I understand each Why and I every point understand clearly in your every class? point clear in your class. फिर से बोलो. रिपीट करो सभी लोग. Why I understand each Why and I every point understand clearly in your each class? Every and point every in your point. class. Why do I understand? Your class. रॉन्ग है. हाँ, Why बाद में do बच्चे I? सही बोल रहे हैं. Why do I? क्योंकि हमें मालूम है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी सेंटेंस नंबर 3 से बनता है WH क्वेश्चन. Fifth. तो सेंटेंस Yes, sir. नंबर 3 से बनेगा Why do I understand each and every point clearly in your class? Class. Why I understand नहीं बनेगा बल्कि बनेगा Why do I understand? do I? बिल्कुल सही है. अब आ जाते हैं नंबर 6 पर. बोलो क्या होगा? Why don't I don't I understand understand each and every point point clearly in your Every class? point clear in your That class. is correct. Why don't I understand each and every point clearly in your class? एकदम सही है. तो मुझे लग रहा है कि आप सभी लोगों का ये कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया है कि सेंटेंस का कन्वर्जन कैसे किया जाता है. किसी को समझने में कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. No, sir. ठीक है. अब थोड़ा सा मैं कुछ लिखाता हूँ, उसको लिखिए. While converting the sentence in present indefinite tense, while converting the sentence in while converting the sentence in present indefinite tense, while converting the sentence in present indefinite tense in all the possible ways, comma, the treatment with Sir, all in the possible. उसके बाद. फिर से बोलो पूरा सेंटेंस.
While converging the sentence, sentence present indefinite tense in all the possible in all the possible sentences, in all the possible ways, in all the possible ways, sentence में in all the possible ways, comma, the treatment with I, we, you, and they. I, we, you, and they remain the same. Remain the same. अब नीचे में इसका मतलब क्या होगा? I is equal to you. मैथमेटिक्स वाला is equal to का साइन देना. I Yes, is sir. equal to you, is equal to we, is equal to they into 6. into यानी क्रॉस 6. इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि I हो या we हो या you हो या they हो, इन सबसे जो 6 तरह का सेंटेंस बनता है ना, वो 6 तरह का ट्रीटमेंट सेम होता है. इसका सीधा सीधा मतलब हुआ कि जैसे तुमने I से 6 तरह का सेंटेंस बनाया, ऐसे ही we से, you से और they से बनेगा. तुम लोग मेरी बात को समझ गए या नहीं समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. अब एक सेंटेंस देता हूं, अब एक सेंटेंस देता हूं, उसको कन्वर्ट करो. लिखो, आप हमें सारे टॉपिक्स टेक्निकली एक्सप्लेन करते हैं. आप हमें सारे टॉपिक टेक्निकली एक्सप्लेन करते हैं. अब Yes, sir. सबसे पहले इस सेंटेंस को हिंदी में 6 तरीके से लिखो. I have done, sir. ऑलराइट, 6 तरीके से यह Completed, sir. ठीक है, ठीक है. Done, sir. completed, ऑलराइट, sir. ऑलराइट, वेरी गुड, गुड स्पीड, Good, sir. गुड सर वन. एक क्वेश्चन पूछना था. एक मिनट, पहले ये कर लेंगे उसके बाद. Completed, sir. ठीक है. अब मैं जरा आप लोगों से सेंटेंस पहले हिंदी में सुन लो. चलिए बताइए क्या बना पहला सेंटेंस हिंदी में? आप हमें सारे टॉपिक एक्सप्लेन करते हैं. जब मैं पूछ रहा हूं तो सभी बच्चों का मुंह हिलना चाहिए और 50 बच्चे की एक आवाज आनी चाहिए. फिर से बोलिए. आप हमें सारे टॉपिक टेक्निकली एक्सप्लेन करते हैं. नेगेटिव. आप हमें सारे टॉपिक्स टेक्निकली एक्सप्लेन नहीं करते हैं. नहीं करते हैं. इंट्रोगेटिव. क्या आप हमें सारे टॉपिक्स टेक्निकली नेगेटिव. क्या आप हमारे सारे टॉपिक एक्सप्लेन नहीं करते हैं. WH क्वेश्चन, WH सेंटेंस. आप हमें सारे टॉपिक्स टेक्निकली क्यों एक्सप्लेन करते हैं? आप हमें सारे टॉपिक्स टेक्निकली क्यों एक्सप्लेन करते हैं, कब एक्सप्लेन करते हैं, कहाँ एक्सप्लेन करते हैं, कैसे एक्सप्लेन करते हैं, वगैरह वगैरह. नंबर 6. आप हमें सारे टॉपिक्स टेक्निकली क्यों नहीं एक्सप्लेन करते हैं? क्यों नहीं एक्सप्लेन करते हैं, कब नहीं एक्सप्लेन करते हैं, कहाँ नहीं एक्सप्लेन करते हैं. ठीक है. चलिए, अब इस पर्टिकुलर टॉपिक को हमें 6 तरीके से बनाना है. तो सबसे पहले हम लोग पहला सेंटेंस एक साथ बनाएंगे. बताओ इसमें सबसे पहले बेसिक सेंटेंस क्या है? आप एक्सप्लेन आप करते हैं. एक्सप्लेन आप एक्सप्लेन करते हैं. तो आप एक्सप्लेन करते हैं कि इंग्लिश क्या होगी?
You explain us. बहुत अच्छी बात है, यू एक्सप्लेन। अब इसमें जुड़ी हुई बात है कि हमें की अंग्रेजी क्या होगी? अस। तो हो गया यू एक्सप्लेन अस क्या चीज? Every topic. All topics. ऑल टॉपिक्स नहीं, ऑल द टॉपिक। all the topics. और टेक्निकल टॉपिक है क्या? Yes, sir. Yes, sir. टेक्निकल No, sir, no, टॉपिक। sir. सारे टॉपिक्स टेक्निकली एक्सप्लेन कर। सारे टॉपिक्स हैं कि सारे टेक्निकल टॉपिक्स हैं? सारे टॉपिक है, सारे टॉपिक सारे टॉपिक सारे टॉपिक्स टेक्निकल हैं, तो सारे टॉपिक्स हैं, ऑल द टॉपिक। each and every topic technically. हाँ, ईच एंड एवरी टॉपिक्स या ऑल द टॉपिक्स। तो हमने ऑल द टॉपिक्स ले लिया। ईच एंड एवरी का मतलब भी वही होगा, ऑल का मतलब भी वही होगा। तो सारे बच्चों की आवाज एक जैसी रहे, इसलिए हमने एक ही वर्ड चुना है। तो हमने अब तक लिखा यू एक्सप्लेन अस ऑल द टॉपिक्स। अब उसमें रह गई बात कि टेक्निकली एक्सप्लेन करते हैं, तो टेक्निकली। Yes, sir. अब हमारा सेंटेंस बन गया यू एक्सप्लेन अस ऑल द टॉपिक्स टेक्निकली। Technically. कोई बच्चा चाहता तो इसको दूसरे तरीके से भी बनाता, यू एक्सप्लेन ऑल द टॉपिक टू अस टेक्निकली। आगे पीछे करके भी बना सकता था, Yes, sir. लेकिन हमने बनाया है यू एक्सप्लेन अस ऑल द टॉपिक्स टेक्निकली। अब इसको 6 तरीके से इंग्लिश में लिखो। Done, sir. completed, sir. Completed, sir. Completed, sir. Completed, sir. Completed, sir. Okay. Completed, sir. Completed, sir. ठीक है। Completed, sir. Completed, sir. चलिए चेक करें हम लोग। Yes, sir. Yes, sir. बताओ Yes, पहला sir. सेंटेंस क्या बना? पहला सेंटेंस क्या बना? You Explain us all the topics. Topic. Not. अब इसका नेगेटिव क्या बनेगा? You don't Negative. Don't Explain us all the topics. Don't explain us all the topic technically. You don't explain us all the topics technically. मतलब यू डोंट एक्सप्लेन अस ऑल द टॉपिक्स टेक्निकली। इंट्रोगेटिव क्या बनेगा? You explain us all the topics technically. Explain us बहुत the अच्छी बात है। topic technically. बहुत अच्छी बात है। डू यू एक्सप्लेन अस ऑल द टॉपिक्स टेक्निकली। अब इसको हम लोग अगला लेते हैं। अब इसको हम लोग आगे लेते हैं। नंबर 4 बोलो। Don't you You explain us all the topics. Explain us all the topic technically. Hello. Sir, Hello, sir. आते हैं नंबर 5 पर। बोलो नंबर 5 क्या होगा? Why do you explain us all the topics? Explain us all the topics. explain us all the topic? क्लियरली, दैट इज फाइन। अब आ जाते हैं नंबर 6 पर। क्या होगा नंबर 6? Why Don't you explain us all the topics ठीक है, व्हाई डोंट यू एक्सप्लेन अस ऑल द टॉपिक्स टेक्निकली। तो ये सेंटेंस भी हमारा बन गया। अब मैं एक सेंटेंस और देता हूं, लिखो। हम लोग ईमानदारी से इंग्लिश सीखने की कोशिश करते हैं। हम लोग ईमानदारी से इंग्लिश सीखने की कोशिश करते हैं। हम लोग ईमानदारी से इंग्लिश सीखने की कोशिश करते हैं। अब नहीं, अभी बनाना नहीं।
अब तुम सब लोग इसका हिंदी समझ गए हो या मुझे तुमको हिंदी 6 तरीके से लिखवाने की जरूरत है? नो सर। समझ गया सर इसको। देख लेंगे, समझ गए। हिंदी समझ गए हो? यस सर। यस सर। हिंदी ठीक है, तो हम लोग हिंदी को छोड़ते हैं और 6 तरीके से हिंदी नहीं लिखेंगे। अब हम लोग इस पर्टिकुलर सेंटेंस को पहले बनाएंगे। रुक जाओ, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से रुको। अब सबसे पहले हमारा सेंटेंस क्या है, एक बार जरा सेंटेंस बोलो हिंदी में। हम लोग ईमानदारी ईमानदारी से लोग ईमानदारी से सीखने की कोशिश करते हैं। तुम लोग देख रहे होगे कि जानबूझ करके मैं थोड़ा थोड़ा सेंटेंस तुमको बड़ा दे रहा हूँ और धीरे धीरे थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ। सिंपल सेंटेंस नहीं दे रहा हूँ कि वह आता है या मैं जाता हूँ, थोड़ा हम लोग बड़ा दे रहे हैं। चलिए, अब इस सेंटेंस को इससे पहले कि हम लोग बनाएं, हम लोग देखेंगे कि इस सेंटेंस का बेसिक सेंटेंस क्या है। व्हाट इज द बेसिक सेंटेंस ऑफ द गिवन सेंटेंस? बताओ क्या हम है? लोग कोशिश करते हैं। लोग कोशिश कोशिश करते हैं। कोशिश कर। Perfect, एकदम सही है। हम लोग कोशिश करते हैं, तो क्या होगा? We try। We try। अब अगला मामला क्या है? इंग्लिश सीखने की कोशिश करते हैं, तो क्या हो जाएगा? We try to learn and या we try to learn English। कैसे? ईमानदारी से, यानी ऑनेस्टली या सिंसियरली। तो हम लोग ऑनेस्टली लिख लेते हैं, सिंसियरली भी आप कर सकते थे। अब हमारा पूरा सेंटेंस क्या बन गया? We try to learn English honestly या sincerely। तो सभी लोगों ने honestly लिखा है, इसलिए सब लोग honestly लिखेंगे। अब इसको 6 तरीके से इंग्लिश में कन्वर्ट करो। completed sir। वेरी गुड, डन सर। बहुत अच्छी बात। सब लोग अगर फास्ट करेंगे तो हम काफी तेजी से आगे बढ़ जाएंगे। अच्छी फाइन बात। सर। अगर मैं कभी पूछूं और किन्हीं ने नहीं किया हो तो वो लोग हमेशा प्लीज वेट बोलेंगे। डन सर। Done, sir. कंप्लीटेड सर। ठीक है, चलिए ले सेंटेंस को। Yes. यस सर। ठीक है, चलो बोलिए सर पहला सेंटेंस। हाँ, पहला सेंटेंस बोले इंग्लिश में। यस सर। We try to learn English honestly। बहुत अच्छा। अब नेगेटिव बोलो। We do not try to learn English ठीक है, इंट्रोगेटिव बोलो। नेगेटिव। Don't try to learn English honestly. We try to learn English honestly. ठीक है, WH। Why do we try to learn English honestly? Learn English honestly। नेक्स्ट, लास्ट। I don't Don't we learn English honestly. बहुत अच्छा। तो अब तक तुम लोगों ने देखा कि तुम लोगों ने आई से सेंटेंस बना लिया, यू से 6 तरह का सेंटेंस बना लिया, वी से भी 6 तरह का सेंटेंस तुम लोगों ने बना लिया है कि नहीं है? Yes. ऑलराइट, अब एक सेंटेंस हम लोग और बनाते हैं दे से। लिखो, दे से लिखो। वे लोग हमें हमारे प्रोजेक्ट को पूरा करने में मदद करते हैं। वे लोग हमें हमारे प्रोजेक्ट को पूरा करने में मदद करते हैं। वे लोग हमें हमारे प्रोजेक्ट को पूरा करने में मदद करते हैं। वे लोग हमें हमारे प्रोजेक्ट को पूरा करने में मदद करते हैं। चलिए, अब इसको हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले हमारा बेसिक सेंटेंस क्या होगा? वे लोग मदद करते हैं। यानी
इंग्लिश क्या होगा? दे हेल्प। शाबाश बाबू, दे हेल्प। किसकी मदद करते हैं? हमारी। हमारी मदद दे हेल्प अस, किस काम में मदद करते हैं? इन कंप्लीटिंग, इन कंप्लीटिंग आवर प्रोजेक्ट, इन कंप्लीटिंग आवर प्रोजेक्ट। अब पूरा सेंटेंस क्या बन गया? They help us in completing our project. कंप्लीटिंग आवर प्रोजेक्ट। समझ गए सब लोग? दे हेल्प अस इन कंप्लीटिंग आवर प्रोजेक्ट। अच्छी बात है। अब इसको 6 तरीके से, हिंदी बनाने की जरूरत तो नहीं है? No sir. No, sir. बहुत अच्छी बात है। अब आप लोग इंग्लिश में बनाइए 6 तरीके से। I have done sir. एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बाबू। एक बच्चा कोई क्वेश्चन पूछ रहा था, क्या क्वेश्चन था? सर शुभम हियर। हाँ बोलो बाबू। सर पूछना था कि सर इन कंप्लीटिंग के जगह टू कंप्लीट आवर प्रोजेक्ट यूज हाँ हो सकता है, हो सकता है टू कंप्लीट आवर प्रोजेक्ट या इन कंप्लीटिंग आवर प्रोजेक्ट, दोनों बातें बिल्कुल सही है। ओके सर। Done, sir. डन सर। ठीक है ठीक है। अच्छा, इससे पहले भी एक बच्चा सवाल पूछ रहा था, उस वक्त मैं सेंटेंस दे रहा था तो उसको मैंने रोक दिया था। क्या था कुछ बच्चे का क्वेश्चन? थोड़ी देर पहले एक बच्चा कोई क्वेश्चन कर रहा था, उस टाइम मैं सेंटेंस लिखा रहा था तो मैंने रोक दिया था। Yes, sir. I think that was Aditya. आदित्य, क्या क्वेश्चन था आदित्य तुम्हारा? आदित्य, व्हाट वाज योर क्वेश्चन? कहाँ चला गया है कि कट गया? आदित्य, आर यू देयर? I think नहीं है अभी, नहीं है sir. नहीं है। No sir. Check. ठीक है, Completed, sir. ऑल राइट। Completed sir. ठीक है, चलिए सेंटेंस को चेक करें। Yes sir. ठीक है ठीक है, पहला सेंटेंस बोलो सब लोग। They They help us. help us in completing our project. ठीक है, नेगेटिव। They don't Help help us in completing our project. In complete our project. इंट्रोगेटिव। Do Do they they help help They in help our project? Help us in our project. Our project. डू दे हेल्प अस इन कंप्लीटिंग आवर प्रोजेक्ट। टुकड़ा टुकड़ा में मत बोला करो। जो लोग स्लो बोलते हैं ना, वो बच्चे थोड़ा सा फास्ट हो जाएं। आप देखिए कि आप कुछ तेज बच्चों के बीच में आ गए हैं। अपने आप को बेवकूफ बना करके रखना और अपना मजाक उड़वाना बंद करिए कि अंत में बोल रहे हैं, देर तक बोल रहे हैं, अपनी डबली अपना राग बजा रहे हैं। तेज बच्चों के साथ हैं, तेज बच्चों के साथ मुंह चलाना सीखिए। कम से कम कंपटीशन रखो कि एक साथ बोले, एक साथ आवाज बंद हो। चलिए अगला, नेक्स्ट, नंबर 4। Don't they help us in completing our project? Completing our project. ठीक है, नंबर 5। Why Do don't they help us in completing our project? In completing our project. ठीक है, दैट इज फाइन। नंबर 6। Why don't they help Don't they us help us in completing our Us project? in complete our project. एकदम सही है। व्हाई डोंट दे हेल्प अस इन कंप्लीटिंग आवर प्रोजेक्ट, बिल्कुल सही है। यहाँ तक समझने में किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई दिक्कत? No sir. No sir. पक्का है? पक्का है? Yes sir. Yes, चलिए चलिए, अच्छी बात है। अब थोड़ा स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखो सब लोग। पढ़ाई छोड़ दो, ध्यान से बोर्ड पर देखो, स्क्रीन पे देखो। अब तुम्हारे सामने मैंने 3 पर्सन लिखा है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। 3 पर्सन लिखा है और मैंने तीनों पर्सन को, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तीनों पर्सन को 2 कैटेगरी में बांट दिया है। और वो कैटेगरी है सिंगुलर एंड प्लूरल की। सिंगुलर वर्ड बना है सिंगल से, जिसका की मतलब होता है एक यानी अकेला, और प्लूरल का मतलब होता है मोर देन वन, एक से ज्यादा जब होता है तो हम उसे प्लूरल कहते हैं। मेरी बात सब लोग समझ गए या नहीं समझे? Yes sir. Yes sir. समझ गया sir. तो अब इस हिसाब से अगर हम देखें तो मैंने तुमको दी है 3 पर्सन्स और 2 कैटेगरी। तो 3 पर्सन्स इंटू 2 यानी टोटल कितनी कैटेगरी बन गई? 3 इंटू 2 कितनी कैटेगरी बन गई? 6 कैटेगरी बन गई। ये कौन कौन कैटेगरी बन गई, स्क्रीन पर ध्यान से देखो। सबसे पहली कैटेगरी बन गई फर्स्ट पर्सन की और सिंगुलर नंबर की। तो हम इसको कहते हैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, यानी ये होता है आई। आई का मतलब होता है मैं। ये हमेशा फर्स्ट पर्सन है और सिंगुलर नंबर होता है।
अब सिंगुलर से मामला मैं से आगे बढ़ के प्लूरल पर हो जाता है, यानी हम पर हो जाता है, तब हम उसे कहते हैं फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर। और फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर क्या होता है? V. अब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर भी हो गया आई, और फर्स्ट पर्सन प्लूरल भी हो गया वी। अब फर्स्ट पर्सन के बाद बारी आती है सेकंड पर्सन की। सेकंड पर्सन उसे कहते हैं जिसे कुछ कहा जाता है, जिसको भी कहा जाता है उसे सेकंड पर्सन कहा जाता है। और हम जिसको भी कहते हैं उसे हम कहते हैं या तो तुम, या आप, या तू। हम जिसको भी बोलते हैं सामने वाले से जब भी बात करते हैं तो इन्हीं तीनों में से कोई एक चीज बोलते हैं ना। या तो हम आप बोलते हैं उसको, या तुम बोलते हैं, या तू बोलते हैं। आप बैठ जाइए, या तुम बैठ जाओ, या तू बैठ जाना, खड़ा क्यों है, यही बोलते हो ना तुम लोग सामने वाले को। तो सामने वाला जिसको कि कहा जाता है उसे हम कहते हैं सेकंड पर्सन। और इंग्लिश में तुम हो या आप हो या तू है, उसके लिए एकमात्र वर्ड यू का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? U का। यू का मतलब ही होता है सामने वाले व्यक्ति वाले को कहा जा रहा है। अब ये यू सिंगुलर भी हो सकता है और यू प्लूरल भी हो सकता है। हम एक व्यक्ति को भी आप कहते हैं और एक से ज्यादा व्यक्ति को भी आप कहते हैं। एक आदमी को भी मैं कहूंगा कि आप बैठ जाइए, एक से ज्यादा व्यक्ति भी होंगे तो मैं उनको कहूंगा कि आप बैठ जाइए। तुम लोग मेरी बात सुन रहे हो तो मैं कहूंगा तुम सुन रहे हो ना। यस सर। और किसी एक बच्चे को भी कहूंगा कि शिवम तुम सुन रहे हो, उत्तम तुम सुन रहे हो। तो तुम या आप किसी एक व्यक्ति को भी कहा जाता है या एक से ज्यादा व्यक्ति को भी कहा जाता है। मेरी बात सब लोग समझ गए या नहीं समझे? ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन आप लोग समझ गए, सेकंड पर्सन आप लोग समझ गए। अब बारी आती है थर्ड पर्सन की। ये जो थर्ड पर्सन है ये या तो सिंगुलर होगा या ये प्लूरल होगा। सिंगुलर यानी अकेला और प्लूरल यानी एक से ज्यादा। तो थर्ड पर्सन प्लूरल जो होता है वो होता है दे। दे मतलब वे लोग। तुम लोग मेरी बात को समझ गए कि नहीं समझ गए? अब जरा सा स्क्रीन पर ध्यान से देखो और तुम लोग रियलाइज करोगे कि हम लोगों ने फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर यानी आई से 6 तरह का सेंटेंस बना लिया है। देखो कॉपी में बनाया है कि नहीं 6 तरीके से? यस सर। Yes sir. फर्स्ट पर्सन प्लूरल यानी वी से भी हमने 6 तरह का सेंटेंस बनाया। देखो बनाया है कि नहीं बनाया? Yes sir. सेकंड पर्सन सिंगुलर या प्लूरल जो भी मानो यू से हमने 6 तरह का सेंटेंस बनाया है कि नहीं बनाया? बना लिया सर। Yes sir. उसके बाद थर्ड पर्सन प्लूरल यानी दे से हम लोगों ने 6 तरह का सेंटेंस बना लिया है कि नहीं बना लिया? तो बना हमने लिया सर। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पर्सन तीनों पर्सन के सिंगुलर और प्लूरल से सेंटेंस बना लिया। केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर से नहीं बनाया है जो आपके स्क्रीन पर डार्क नेवी ब्लू कलर में दिख रहा है, बैगनी पर्पल कलर में दिख रहा है। आप लोग मेरी बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? यस सर। Yes sir. तो अभी तक हम लोगों ने आई से बना लिया, वी से बना लिया, यू से बना लिया, दे से बना लिया, केवल ही या शी से नहीं बनाया। समझ गए इस बात को? यस सर। Yes sir. अगर ही और शी से भी हम 6 तरीके से बना लें तब हम कह पाएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग किसी भी सब्जेक्ट को 6 तरीके से कहना सीख गए। मेरी बात तुम लोग समझ गए या नहीं समझ गए? यस समझ गया। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जो होता है ही या शी, ये जो होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ये कुछ अलग तरीके से बनता है। विकी तुम्हारे घर से कुछ आवाज आ रही है बार बार, म्यूट करो अपने आप को, म्यूट ही रखना, अब अनम्यूट मत करना अपने आप को। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर किसको कहते हैं? आई और यू के अलावा कोई भी जो अकेला होता है उसे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कहते हैं। फार्मूला को याद रखना, आई और वी के अलावा कुछ भी जो अकेला होगा वो थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा। इसका एग्जांपल क्या हुआ? जैसे मैं ही कहूं तो कोई अकेला आदमी है, शी कहूं तो कोई अकेली लड़की है, इट कहूं तो किसी चीज के बारे में बात कर रहा हूं मैं, यह के बारे में, दिस कहूं तो भी, राज कहूं तो किसी लड़के का नाम ले रहा हूं, सिमरन कहूं तो किसी लड़की का नाम ले रहा हूं, माय ब्रदर तो मैं अपने एक भाई का जिक्र कर रहा हूं,
माय फादर तो अपने एक फादर का जिक्र कर रहा हूँ, माय मदर तो अपनी एक माँ का जिक्र कर रहा हूँ। तो ये सारी जो चीजें होती है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होती है। सब लोग मेरी बात को समझ गए कि नहीं समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. अब लिखिए, एक हेडिंग बनाइए। Yes. अब एक हेडिंग बनाओ, conversion of present indefinite tense sentence, conversion of present indefinite tense sentence with third person singular number, ब्रैकेट में लिख दो ही शी इट अजय विजय, ही शी इट अजय विजय। अच्छा, आज के बाद तुम लोग की दुर्गा पूजा की छुट्टी हो जाएगी और कॉलेज फिर अगली पढ़ाई तुम्हारी चालू होगी 28 को, 28 तारीख से तुम्हारी क्लास फिर चालू होगी। बीच में आप लोगों को दुर्गा पूजा की छुट्टी हो जाएगी। सेंटेंस फिर से रिपीट कर दिए। सेंटेंस क्या था भाई? कोई एक बच्चा सेंटेंस रिपीट करो। Conversion of present indefinite sentence with conversion of present indefinite conversion of present indefinite sentence with third person singular number. ब्रैकेट में मैंने बताया अजय विजय, ही शी इट अजय विजय। हेलो सर। हेलो। हाँ यस। हाँ सर, कह रहे हैं कि जो हम लोग का जो नया ग्रुप बना है बेसिक AQ करके, उसमें सर हम लोग को मैसेज करने का राइट्स नहीं मिला है। तो सर कुछ भी क्वेरी होता है तो हम लोग को कॉल करना पड़ता है। अच्छा, कॉल करना पड़ता है। हाँ, वो एडमिन ग्रुप बना होगा, बच्चों का ग्रुप नहीं बना होगा। फिलहाल तुम लोग कॉल ही करोगे तो एक दूसरा ग्रुप बाद में बनवा देंगे। अच्छा ठीक है। फिलहाल छुट्टी का इंफॉर्मेशन मिल गया सभी लोगों को? यस सर। ठीक है। Yes, sir. अब मैं तुमको कुछ लिखा रहा हूँ, नीचे में लिखो। नंबर 1 आई गो, उसके ठीक नीचे में लिखो यू गो, लाइन मत छोड़ना। आई गो और उसके ठीक नीचे में बगैर लाइन छोड़े यू गो, और उसके ठीक नीचे वी गो, और उसके ठीक नीचे दे गो। अब एक लाइन छोड़ दो। अब जरा देखते हैं, आई गो, यू गो, वी गो, दे गो। अब एक लाइन छोड़ के ही गोज। यस सर। ही गोज। Pardon, please, sir.